Hello, hello, good morning. Hello, good morning. Let us wait. Hi, Gurdat from Dubai. Hi, how are you, Gurdat? Abhinav, good morning. Pritesh, good morning. Good morning. Because somewhere somebody is watching. They're in US too, so hence it's good morning. Guru, good morning. Pritesh, good morning. Vinod, good morning. Vinod from Qatar, good morning. Hi, Vinod. Good morning. Let us wait for a couple of minutes, and there will be few more people joining us. Sachin, good morning. Sachin from Sweden. Vishwas, good morning. Deep, good morning, Deep. Hello, Sachin. Jayaprakash sir, good morning. Rupali, good morning. Dr. Rupali, good morning. Vishwas, hi. Vishal, good morning. Milind, good morning. Rajkumar sir, good morning. Guys, stay tuned because the topic is very interesting. Retire young, retire rich. Right, so gone are the days when people used to retire at the age of 58 and 60. Okay, it's time to again hang up boots very soon. Anand, good morning. So Rupali, probably you would know that as a doctor, you know how you can retire early. Milind, you as a retouching artist, you can understand how to retire early. Okay, so good to go. All right, guys. Okay, so basically, why we are meeting today? It is to discuss a very important subject in our life called retirement, right? So retire young, retire rich. ओके सो गाइज आप आपकी व्याख्याएं लिख सकते हैं कि रिटायरमेंट मतलब आपके लिए क्या है, राइट? रिटायरमेंट मतलब 58 के वक्त रिटायर होना मतलब रिटायरमेंट है, या फिर काम से मुक्ति मतलब बॉस से मुक्ति, या फिर आपके टिपिकल काउंटर से मुक्ति, ये आपके लिए रिटायरमेंट है? तो जिनको लगता है कि 58 के एज में ही रिटायरमेंट हो सकता है वो एक लिखे, और जिनको लगता है अदरवाइज वो दो लिख सकते हैं. So can I have a poll? 1 or 2? Great. Abhinav sir is saying when you don't need to work for money. Fantastic. Doctor never retire, always on duty. Rupali, yes, you are right. But yes, we want you to retire early. Okay, Chetan is saying that okay. Rajkumar sir is saying okay, retirement. Okay, not 58 is okay. So fantastic. Okay. Can we have again, couple of answer and questions? Fantastic. Okay.
Aniket is okay. Aniket, so what do you think is retirement? Retiring at the age of 58 or 60 is option one, or otherwise is option two. So क्या लगता है? Sachin Thakre, yes. Sachin sir, two. When you stop working but still your cash flow is on. That's Pritesh sir is saying. Fantastic. So guys, ओके, हम लोग है ना अभी तक के सुनते हैं रिटायरमेंट मतलब क्या। जब डैड रिटायर्ड हो गए थे, उनको एक वो शॉल दिया गया था, एक HMT का वॉच दिया गया था, एंड देन वो बड़ी उनकी खुशी थी कि बाप रे इतने सालों के बाद मैं रिटायर्ड हो गया। तो वो जो रिटायरमेंट का जो सेरेमनी हम लोगों ने जो देखा था अपने डैड के वक्त, शायद वही उसी रिटायरमेंट की इम्प्रिंट्स अपने अपने माइंड में है, राइट। सो वी हैव बीन हियरिंग दिस टर्म थ्रू आउट आवर लाइफ। ओके, so answer is taking lifetime of break from our job or business, not having to go to work anymore, no boss or business counter to sit at there for 12 घंटे 10 घंटा, right? And that is absolutely clear, right? कि मतलब जिस जगह पे मैं जाता हूं उस जगह पे मैं काम करने के बाद मुझे महीने का पैसा मिलता है, राइट? वो रिटायरमेंट की व्याख्या अभी ना पूरी तरह पुरानी हो चुकी है। जैसे हर चीज बदल रही है, जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, जैसी दुनिया बदल रही है, तो हर चीज बदल रही है, तो रिटायरमेंट की व्याख्याएं भी बदल चुकी है। बट रिटायरमेंट के देयर आर सर्टेन प्रोज एंड कॉन्स। रिटायरमेंट के कुछ प्लस है और कुछ माइनस भी है। तो जरा थोड़े से जान लेते कि वो प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। पहले कॉन्स से चालू करते हैं हम लोग, राइट? क्या हो सकता है कि फैमिली ऑब्लिगेशन लाइक हायर स्टडीज ऑफ किड्स, करियर, वेडिंग, फैमिली में ये सारी लाइबिलिटीज है, ये कॉन्स है। स्मॉलर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लाइक PF, इंश्योरेंस, कुछ बॉन्ड्स होते हैं, कुछ FDs होते हैं, कुछ SIPs होते हैं। इज इट लाइक इनफ? रिटायरमेंट सेविंग हैव टू लास्ट लॉन्गर। जितना भी मैंने पैसा बचा है वो पूरी जिंदगी भर चलना चाहिए, राइट? नीड टू फाइंड हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जरूरत होती है। द यंगर यू रिटायर द मोर यू रिस्क रनिंग आउट ऑफ मनी। मतलब जितने जल्दी आप रिटायर होंगे तो उतने साल आपके पास होंगे उस सालों की चिंता करने के लिए। यू अंडरस्टैंड, राइट? सो you will have to cut back on spending to save money and it will suck, it will not interest you, right? क्योंकि आपको कम करना पड़ेगा सब कुछ। you will feel permanently happier or rather unhappier। अरे मैंने क्यों छोड़ा, अगर यही पैसे का स्रोत अगर मेरा बना होता तो। and guys, you will die younger due to laziness and loss of purpose। क्योंकि पर्पस ही नहीं है, लॉस ही नहीं, मतलब लेजीनेस है, right? Because I could see at my home, my dad was a principal and when he retired, मतलब वो उनका जितना हैप्पीनेस, जितना इंथुजियाज्म था, वो सब कुछ खत्म हो चुका, क्योंकि पर्पस ही नहीं है लाइफ में अभी बचा हुआ। वो लेजीनेस के कारण चलते, ही इज लाइक गेटिंग ओल्डर। यू अंडरस्टैंड, राइट? सो ये हैप्पीनेस के लिए रिटायर होते हैं, लेकिन हरदम है ना, हैप्पीनेस के लिए रिटायर होते हैं लेकिन स्ट्रेस में ही रहते हैं। एंड दीज आर ऑल कॉन्स ऑफ रिटायरिंग अर्ली। अब उसके प्रोस क्या है? पोटेंशियली गुड फॉर योर हेल्थ। शायद जिम्नेशियम जा सकते हैं, आप एक रेजिम मेंटेन कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं। मतलब पोटेंशियली गुड फॉर योर हेल्थ, रिटायरमेंट इज गुड फॉर योर हेल्थ। मोर टाइम फॉर ट्रैवल। जो जिंदगी भर आप लोग सिर्फ यूट्यूब पे अच्छे अच्छे कंट्री देखते हैं, शायद ये हो सकता है कि इसके आगे आपको वो वक्त मिल सकता है कि अलग अलग कंट्री में आप जा सकते हो, राइट? गुड फैमिली एंड पर्सनल टाइम। फैमिली के लिए जो कभी वक्त नहीं दिया जा सकता, तो वो वक्त तो आपके पास है। पेरेंट को अच्छा वक्त दिया जा सकता है, वाइफ को अच्छा वक्त दिया जा सकता है, बच्चों के साथ अच्छा वक्त बिताया जा सकता है, राइट? एंड अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट न्यू करियर। एक नया करियर की शुरुआत कर सकते हैं, वो भी हो सकता है रिटायरमेंट के बाद, राइट? परस्यू योर पैशन, ETC बहुत सारी चीजें हैं। जिंदगी भर हम लोग सोचते थे मुझे पेंटर बनना है, मुझे मुझे बर्ड वॉचिंग करना है, कुछ तो पैशन होता है, राइट? बट वो पैशन के लिए जो जिंदगी भर वक्त नहीं मिल रहा है, वो वक्त शायद आप अभी दे सकते हो। ये आपके उसके प्रोज हो सकते हैं। क्वेश्चन इज, हु विल फंड योर रिटायरमेंट? सोच के देखिए। ये सारा है ना, सोचने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन गाइज, हु इज गोइंग टू फंड योर रिटायरमेंट? इट्स ओनली यू, नोबडी एल्स। Not your employer, not your business. It's only you and you. So, जो भी रिटायरमेंट के बेनिफिट हुआ करते थे अभी तक के, वो सारे रिटायरमेंट के बेनिफिट है ना, दे आर लाइक ओवर लॉन्ग बैक गॉन। गवर्नमेंट लगा है कि रिटायरमेंट के बेनिफिट कितनी जल्दी खत्म कर दे,
प्राइवेट में तो रिटायरमेंट बेनिफिट नाम का कुछ होता ही नहीं है। 10-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, जितना भी आपको एक बार मिल गया पैसा, उसके बाद रिटायरमेंट के बेनिफिट एब्सोल्युटली जीरो। जिस दिन जॉब और धंधा बंद, पैसा बंद, राइट? लेकिन गाइज, मनी इज फ्यूल टू लाइफ। हाउ विल यू फंड योर रिटायरमेंट ड्रीम्स? हाउ विल यू फंड योर रिटायरमेंट ड्रीम्स? पैसे उतने ही जरूरी होते हैं जितना ऑक्सीजन और पानी। कभी हम लोग सोचते हैं क्या, ऑक्सीजन मैं कहां ढूंढूं, पानी मैं कहां ढूंढूं? तो जितना ऑक्सीजन और पानी अपने जिंदगी के लिए जरूरी है, उतना ही जरूरी है पैसा, राइट? जैसा उसके लिए नहीं सोचते, वैसा पैसे के बारे में भी मुझे सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बट इज इट पॉसिबल? सोच के देखो, क्या हो सकता है? पैसा जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही जितना ऑक्सीजन और पानी। दोनों के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती है, बट पैसे के लिए 24/7 मनी मनी मनी, राइट? थोड़ा सोच के देखो गाइज, थोड़ा सोच के देखो कि अपनी जिंदगी कैसे चल रही है। अगर एक 100 साल का अगर हम लोग एक पूरा एक पाई चार्ट अगर लेते हैं, तो शुरुआती 25 साल, मतलब जन्म से लेके तो 25वें साल के हम लोग जब हो गए, तब तक के हम लोगों को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब those the 25 years of our life was completely taken care by our parents, no worry. And the next 25 years somehow we managed, right? somehow घर खरीदा, कार का EMI, घर का EMI, बच्चों के स्कूल का EMI, मोबाइल का EMI, right? somehow we managed. But have you ever thought, आने वाले जो 40 और 50 साल जो बचे हैं 50 के बाद, उसका क्या? And guys, that next 40 or 50 years after your 50 is going to be a uphill task. चढ़ाई है वो। क्या क्या चीजें उधर होने वाली है, मतलब जो 50 साल में नहीं हुआ था, वो सारी चीजें उधर होने वाली है। हॉस्पिटल्स, इमरजेंसीज, रिटायरमेंट, क्या क्या, जितना खर्चा उस 50 में है, उतना खर्चा ये प्री 50 में नहीं हुआ था, वो पोस्ट 50 में होने वाला है। यू अंडरस्टैंड? सो हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज नेक्स्ट 40-50 years? बिग क्वेश्चन, राइट? पूछ के देखो कि आने वाला 50 मैं कैसे मैनेज करूंगा। समझ में आ गया? मैं मतलब ये इंसाइट मुझे कहां से मिला, क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग का प्रोफेशनल हूं। मेरा काम क्या था? स्ट्रैटेजीज बनाओ, स्ट्रैटेजीज डिजाइन करो, ब्रांड्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, बहुत सारा। एंड देन बट मैं हरदम सोचता था कि मेरे स्ट्रैटेजी मेरे पास है ही नहीं। मैं स्ट्रैटेजी तैयार करता हूं, लेकिन कंपनी को बेचता हूं, ब्रांड बिकते हैं, मेरे कारण ब्रांड बिकने लगा है, मेरे कारण सर्विसेज चल निकली है, मेरे कारण कुछ करोड़ का इजाफा हो गया कंपनियों में, लेकिन उस तरह की स्ट्रैटेजी मेरे पास बिल्कुल ही तैयार नहीं है। यू अंडरस्टैंड, राइट? सो and then I started writing my own strategy, and then my finding was कि 25 साल शुरुआती 25 साल समूह मैनेज हो गए पेरेंट्स के कारण, दूसरे 25 साल समूह मैंने मैनेज कर लिए, बट आने वाले 50 का क्या? राइट गाइस, हम लोग क्या क्या कर रहे पता है? 25 सालों से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। वो LIC एजेंट आ जाता कि आपका रिटायरमेंट प्लान लेके आ जाता है, और फिर हम लोग उसमें भी है ना, हर महीने का पैसा बचाते 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 उसमें भी पैसा हम लोगों का जा रहा है, राइट? LIC का रिटायरमेंट प्रीमियम भरते भरते, म्यूचुअल फंड में SIP निकालते हैं हम लोग, कुछ छोटे मोटे FDs है, कुछ बॉन्ड्स है, राइट? बट सोच के देखो कि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये इनफ है? जो चंद लाख हम लोगों ने इकट्ठा कर लिए, वो इनफ है? इट्स नॉट इनफ। सोच के देखो, थिंक फॉर अ व्हाइल। Solution is not planning retirement, guys. And I repeat, solution is not planning retirement. It's about building solid for retirement. मतलब you can't plan retirement anymore. You have to build retirement now. I repeat again, you cannot plan your retirement anymore. You have to build your retirement. So what is needed today?
is a system-centric business, not a systematic investment plan called SIPs. Right? So what we need is a SCB, system-centric business. We don't need any SIPs. हम लोग है ना जिंदगी भर क्या करते हैं, जिंदगी भर हम लोग पर्सन सेंट्रिक बिजनेस करते हैं. मतलब नौकरी पे जाओ तो पैसा मिलेगा, धंधे पे जाओ, काउंटर पे बैठो तब पैसा मिलेगा. मतलब हम लोग जिंदगी भर पर्सन सेंट्रिक बिजनेस करते हैं. दुनिया के 97% लोग इसी सिंड्रोम का शिकार होते हैं. वो पर्सन सेंट्रिक बिजनेस करते हैं. लेकिन वी डोंट नीड अ पर्सन सेंट्रिक बिजनेस. पर्सन सेंट्रिक बिजनेस करके हम लोगों को कुछ मिला नहीं है, और जो भी मिला है उसके बदौलत रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं हो सकता है. व्हाट वी नीड टुडे इज अ सिस्टम सेंट्रिक बिजनेस. मतलब मैं काम नहीं भी करूं तब भी मेरा पैसा आना चाहिए. सवाल यह है कैसे? हवा से? कहां से आएगा पैसा? मानसून लेके आएगा पैसा? ठीक है. सो गाइस अंडरस्टैंड, सी इट डज नॉट नीड 25 years ऑफ प्लानिंग. ओल्ड फैशन वे ऑफ थिंकिंग हो गया वो. इट डज नॉट नीड 25 years ऑफ प्लानिंग. what is needed today is 2 years ऑफ बिल्डिंग बिजनेस विथ विजन. यू नो वो सारा ओल्ड फैशन वे हो गया. 25 साल से जो SIP चल रहा है, म्यूचुअल फंड्स, ये वो LIC, और जो छोटा छोटा पेट काट काट के मतलब राइट कि साल का उतना प्रीमियम जाना ही चाहिए, प्रीमियम अगर लैप्स हो गया तो क्या, ये सारा जो डराते आया ना, इंश्योरेंस एजेंट आते थे वो डराते थे ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा, उसके बाद क्या, अगर हॉस्पिटल अगर आ गया तो कैसा करोगे, राइट. बट इससे कुछ नहीं होने वाला है. राइट. हो क्या सकता है? व्हाट वी नीड टुडे इज, we need to build a business with vision. What we need today is a smart work with technology and build business digitally. That is going to be your term insurance plan for life. That is going to be your medical insurance for life. And that is also going to be your entire planning for life called, building business today. So, build business digitally. See, survival है ना, survival should not be our destination. और वो अपना प्राइमरी गोल नहीं होना चाहिए. अरे कैसे भी करके सर्वाइव हो जाऊंगा, नहीं हूं. एक एक चीज विजुअलाइज करके देखो कि चीजें कितनी लगने वाली है. राइट. मैं ऐसा सोच के देखता हूं क्योंकि माय डॉटर इज स्टडिंग इन यूरोप. बट यूरोप में मैं और मेरी वाइफ का एक जाना आना, उधर 8 दिन उसके साथ रहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए पे गॉन. तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने अभी गिनाए, लगता है कि ये इंस्ट्रूमेंट इनफ है? I have 2 daughters. Can you imagine? That means they are not enough. What is needed today and what is pressing today, and I need to visualize, how my next, 40, 50 years is going to be. And that is only possible only by building a business. And today, the whole world, this, the knowledge economy, or this, today's world or today's economy offers me to build business digitally. You understand, right? सो सर्वाइवल मेरा एम नहीं होना चाहिए, वो मेरा प्राइमरी गोल नहीं होना चाहिए. नहीं तो लोग क्या करते हैं, स्विट्जरलैंड का टूर तो करके आ जाते हैं, लेकिन वो स्विट्जरलैंड के टूर का भी EMI कर लेते हैं, वो भी 3 साल भरते रहते हैं. समझ में आ रहा है? I did not want to have this kind of situation. I was NRI for few years, so I have seen how it cost. I have seen good money in my life too, but it was not enough. वो रेत की तरह पैसा मेरी जिंदगी से कैसे फिसल गया वो भी मैंने देखा है. राइट. बट सारे अप्स एंड डाउन से मैं डाउन कभी नहीं हुआ, सिर्फ सीखा ही. एंड इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद व्हाट आई हैव चोजन टुडे इज टू बी अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, इज टू बी अ DG एंटरप्रेन्योर. सो माय एक्सपीरियंस एज अ creative director, as a regional creative director, worked with some of the finest advertising companies in India and abroad. As a jobby, made me realize that job can't get me time and money freedom. मुझे ना job वो time और money freedom नहीं दे सकता है. Thus, I was on lookout for a business which helped me build my multiple sources of income. Right? I was reading this book by Grant Cardone, and he was saying that
मिनिमम एक आम आदमी को मिनिमम 5 सोर्सेस ऑफ इनकम करके रखने चाहिए। कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने अपार्टमेंट ले लिया, रेंट आउट कर दिया, उसका पैसा आ रहा है, दैट्स अ रेसिडुअल इनकम, दैट्स अ पैसिव इनकम, यू आर नॉट एक्टिवली वर्किंग फॉर दैट मनी। लाइकवाइज वी गॉट टू क्रिएट एटलीस्ट 5 सोर्सेस ऑफ इनकम, नहीं तो फिर मरते दम तक के टिल ग्रेव वी हैव टू वर्क। यू अंडरस्टैंड राइट? सो मुझे ये पता चल गया था कि मुझे टाइम और मनी दोनों का फ्रीडम नहीं मिलने वाला है, एंड thus I was on lookout for the business which helped me build, I repeat, a business which helped me build my multiple sources of income before I think of retirement. खर्चे से कई गुना मेरा इनकम होना चाहिए, खर्चे से कई गुना मेरा इनकम होना चाहिए, and then only I can think of retirement. Hence I have partnered with a global business platform which help for myself and for my self development and my betterment. So generally क्या होता है ना कि we are very well educated and literate but always remain illiterate, and I was that kind. I was into that kind, very postgraduate, very literate but financially illiterate. You understand, right? So but I discovered this platform which taught me how to be financially literate too. ये बिजनेस मुझे है ना, दिस बिजनेस टीचर्स मी 3 M's ऑफ लाइफ. इवन माई नेम इज मनोज, my dad's name starts also from M, and then my surname also starts from M, so 3 M's. But I discovered that this business also teaches me 3 M's of life. How to make money primarily, right? मतलब mentorship इतनी है, the fantastic, the superb mentors like Nilesh sir, and then Priyanka ma'am, and then Viras sir, and kind, so the fantastic mentorship. So these people teach me how to make money first, then they also teach me how to grow my money, and the third thing, they also teaches me how to multiply my money, how to compound it, and then वो compounding effect भी कितना पैसा दे सकता, right? So 3 M's I literally discovered. I am also like 3 M's, but my 3 M's I literally discovered in this business. You understand, right? So basically what happens here is how to start, then second how to manage, मतलब how to start business वो भी सिखाया, then how to manage business, and then how to make it sustainable. That means how to let your business grow without you. इसका मतलब है कि मैं काम नहीं करूं तब भी मेरा बिजनेस काम करते रहना चाहिए, ये भी सिखाया. पहले तो पैसा कमाना सिखाया, फिर उसको मैनेज करना सिखाया, फिर उसको मल्टीप्लाई करना भी सिखाया, राइट? दैट मीन्स ऑटो पायलट मोड, एंड दैट इज कॉल्ड सिस्टम सेंट्रिक बिजनेस. ओनर को कस्टमर पता नहीं होता, कस्टमर को ओनर पता नहीं होता है, ट्रांजैक्शन अपने आप होते रहते हैं और ओनर अपने आप पैसे कमाता है. लाइक अमेजॉन, फेसबुक, उबर, ओनर को नहीं पता है कस्टमर को ओनर, कस्टमर को ओनर नहीं पता है. ट्रांजैक्शन कीप हैपनिंग, बट देन ट्रांजैक्शन विल कीप हैपनिंग. आई विल ओनली नो व्हेन हाउ टू काउंट मनी, बट दैट्स लेवरेजिंग, and that leveraging this business has actually taught me. So for whom this works, also understand for whom this work. Number one, this works brilliantly for the students who do not want to serve as a jobby throughout their life. My daughter is 22-year-old, studying in Europe, in Prague, but almost make $2,000 every month from this business. Brilliant, ना? नहीं तो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह पाते पाते 40 की उम्र आ जाती है, 45 की उम्र आ जाती है, और 40 की उम्र में भी इतना पैसा नहीं दिखता है. And that's entrepreneurship, right? So it works for student brilliantly. Professional who wish to start something of their own without any hassle of traditional business setup. Traditional business setup में जगह लेनी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर करना होता है, काउंटर करना होता है, फर्नीचर करना होता है, एम्प्लॉय रखने होते हैं. मतलब नॉर्मली बिजनेस को किल क्या करता है? ओवरहेड्स. But the people who seek a business without any overheads. Number 2, मतलब work for professionals. हाउसवाइफ जिनको लगता है कि नहीं मेरा हस्बैंड ही काम करा लेकिन मैंने कुछ तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए ना, कब तक मैं चूल्हा चौका करते रहूंगी, राइट? फॉर देम ऑल्सो दिस वर्क्स ब्रिलियंटली.
बिजनेस पर्सन हु विश टू गेट रीड ऑफ कंपटीशन, एक दुकान डाल दिया दूसरा दुकान चालू हो गया, कंपटीशन, राइट, बहुत हो गई ये कंपटीशन, बहुत हो गया कम पैसा आना काउंटर पे, ऐसे लोग वर्क ब्रिलियंटली फॉर द बिजनेस पीपल। फार्मर्स, गुड फॉर फार्मर्स, हम लोग देखते हैं कि नहीं कि वो फार्मर्स को अलाइड बिजनेस किए जाते हैं, पोल्ट्री का बिजनेस होता है, गोट का बिजनेस होता है, इस तरह के अलाइड बिजनेस किए जाते हैं, राइट। बट दिस बिजनेस, व्हाई कांट दिस बिजनेस बी अ डिजिटल बिजनेस फॉर द फार्मर्स? सो be it student, be it professional, government servant, business person, VP, general managers, managing directors, defense professionals, farmers, retired person, any person at any given point of time should think of retirement, and this business works like really brilliantly well for them. I'll give you an example, right? And this, I'm very impressed with this gentleman called, Ritesh Agrawal. This boy was just 16-year-old when he started this business called Oyo Rooms. At the age of 22, he was the youngest billionaire in the world. That's entrepreneurship. बट कितने सारे पापड़ उनको बेलने पड़े होंगे यंगेस्ट बिलियनर बनने के लिए, तो हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं, राइट। बट यहाँ एवरीथिंग इज बीन कंप्लीटली टेकन केयर, द प्लेटफॉर्म इज एब्सोल्युटली रेडी। व्हाट आई नीड इज टू जस्ट थिंक, just take decision and start. You understand, right? So that's okay. So what can help us retire early is entrepreneurship. समझ में आ गया? मतलब रिटायरमेंट हम लोगों को SIPs नहीं देने वाला है, रिटायरमेंट हमको इंश्योरेंस नहीं देने वाला है, रिटायरमेंट हमको कुछ बॉन्ड्स नहीं देने वाले हैं, रिटायरमेंट हमको देने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप, धंधा। टिपिकल धंधा समझ लो गाइज, डिजिटल धंधा। क्या दे सकता है? डिजिटल धंधा, डिजीप्रोनरशिप, डिजिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कॉम्बिनेशन, डिजीप्रोनरशिप। सो ours is a community platform, ours is a community based platform where we help and encourage each other to grow and build something across the globe. Can you imagine? Like, by sitting here at the cushy comfort of my home, I do have a business there in Bahrain, I do have business in Qatar, I do have business in Kuwait, in US, right? So today, son of a humble teachers today can boast to have business across the globe. I am a multinational guy today, you understand, right? And that's the beauty of the entrepreneurship. So it's a community based the platform where we help and grow and encourage each other to grow together, right? So if at all, मतलब ये सारे कन्वर्सेशन का पर्पज ये है, if at all something appealed you, ये सारे कन्वर्सेशन में अगर कुछ भी आपको अगर ऐसा लगा होगा कि हाँ ये पॉइंट है, कितने सारे इंसाइट शायद इस कन्वर्सेशन में आपको मिले होंगे, राइट। बट उस इंसाइट ने अगर कहीं पे भी थोड़ी सी दिल की अगर घंटी अगर बजाई होंगी ना, तो गाइस think of me, think of that person who said that, okay, attend this guy, attend his the live session on FB, right? So if at all something appealed you and wish to retire young, retire rich, do drop me message, text me, send me your number, or speak to that person who said attend this chap, attend this person on Facebook. Okay, I will be honored to partner with you for your growth. My 20 years of advertising experience, of brand building, service building, business building, and my 6 years of direct selling experience will work wonder for you and for your growth and building for that the rich retirement. So take decision for life. हम लोग डिसीजन लेने के बड़े कच्चे होते हैं, राइट। बहुत ही चंद डिसीजन हम लोगों ने लिए होते हैं, किसके साथ शादी करना है, कौन सी नौकरी करनी है, कौन सी डिग्री लेनी है, टाइप, राइट। अदरवाइज हम लोगों की डिसीजन नहीं होती, कौन सी सब्जी खाना है, कौन सी नहीं खाना है, कौन सा होटल, बस इसी तरह के हम लोगों के छोटे छोटे डिसीजन होते हैं। बट गाइज, टेक दैट डिसीजन फॉर लाइफ एंड टेक दैट डिसीजन फॉर योर वाइफ, टेक दैट डिसीजन फॉर योर सन, जो है ना वो पेपर के प्लेन उड़ाता है, जिसको शायद कल एस्ट्रोनॉट बनना है,
वो बेटी जो क्या होते आईने के आगे क्या बोलते क्या मटकती है, इटलाती है, राइट? हो सकता है उसको फैशन डिजाइनर बनना हो इटली में जाके, राइट, या मिलान में जाके, उसके लिए लो। वो पेरेंट्स जिंदगी भर आपको बढ़ाने के लिए उन्होंने काम किया, राइट? हो सकता है एक सिंगापुर का टूर उनके लिए बहुत 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 2 साल का हैप्पीनेस दे दे। बट ये सारे डिसीजन है, डिसीजन लो, क्योंकि आपके डिसीजन ना लेने के कारण है ना आपकी फैमिली सफर होती है। एक डिसीजन, you are just that one decision away from making solid impact for your family and your society. Be that that hero. You understand, right? वो सारे जो जो अपने जो है ना loved ones, your spouse, your parents, your बेटा बेटी, सब लोग है ना बड़े आशा के साथ देख रहे हैं, राइट? एक आपके उस डिसीजन की तरफ। टेक एन एजुकेटेड डिसीजन, और वैसा हाफ हाफ नहीं, बट टेक दैट द एजुकेटेड डिसीजन, टेक दैट प्रॉफिटेबल डिसीजन, but take decision, guys. Remember me, take that decision. So yes, ping me, text karo, I will help you. Take that brilliant decision for life. I wish to contribute immensely in your life. I genuinely wish to contribute in your life, as I want you to retire young and retire rich. So guys, see you on top, and it was fantastic talking to you, and I will see you in my next video with next topic. So good night. I am waiting for your decision. I'll see you. Thank you.